Okay, now so let us start. Let us continue. जो चीज हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे. So far what we have this phenomena, the mechanism of laser, as this is the ground state where we have N1 population. Now I will use laser terminology. So मैंने कहा था population क्या होता है? Population is actually the total number of atoms present at a specific energy level. So here in the ground state we have N1 population. When we provide energy, this is E2. When we provide energy by using a proper pumping technique, एक pumping technique जैसे करंट मैंने यूज किया था, that pumping technique is actually the energy giving technique to pump atoms from one energy level to another energy level. हम एक लेवल से दूसरे लेवल में जिस टेक्निक से एनर्जी देते हैं उसको पंपिंग टेक्निक्स कहते हैं. और ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर. अगर सॉलिड स्टेट लेजर हुआ तो हम जेनान या रेडान फ्लैश ट्यूब यूज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड दैट गैसियस लेजर हुआ, देन वी यूज इलेक्ट्रिक आर्क मेथड. वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स एंड वी प्रोवाइड हाई पोटेंशियल इन बिटवीन. और अगर बाय द वे सेमीकंडक्टिंग लेजर हुआ, सेमीकंडक्टर लेजर हुआ, देन जस्ट डायरेक्टली वी यूज अ बैटरी. जैसे स्विच ऑन किए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली लेजर में कन्वर्ट होता है. So by using proper pumping technique, when we give energy to the population of ground state, so out of N1 population, N2 populations are excited up to higher energy level. So this is a transition because of absorption. So the first type of transition, this is known as absorption transition, and this absorption transition NAB, it depends on three parameters. One is that energy given, second is the time of energy given, and the first one is in the N1, that is total number of population present at ground state with this Einstein coefficient B12. And here its lifetime is only 10 to the power minus 8 second. And if we हम इस पे किसी प्रकार कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं किए, then these atom will come back to spontaneous process. तो ये spontaneous process एक random process होता है, और इस spontaneous process से जितने प्रोटॉन्स हमें मिलते हैं उसको लेजर की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. And the total number of spontaneous transition, this depends on this delta T, time of the system is left free, as well as the total number of population up to a higher energy level with Einstein's coefficient A21. So हमें random प्रोटॉन्स मिलते हैं जिसको हम लेजर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर प्रोटॉन लेना शुरू किया. And then we have the third type of transition that is known as stimulated transition. So this is stimulated transition. और इस stimulated transition में एक एटम से हमें दो प्रोटॉन मिलते हैं. So this total number of stimulated transition depends on this energy given at higher energy level, delta T, the time up to the energy is given, and this N2, the total number of atoms present at higher energy level with another Einstein coefficient that is B21. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. ये this actually gives the direction of transition. 1 से 2 हो रहा है तो 1 2, 2 से 1 हो रहा है तो 2 1. So this is 2 1, and इससे हमें एक चैन रिएक्शन मिलता है. दो प्रोटॉन से दो प्रोटॉन दो एटम को स्टिमुलेट करेगा, बिकम 4. एक एक एटम दो प्रोटॉन और सोएंगे. 4 से 8, 8 16, 32, 64. इस तरह से बाइनरी मल्टीपल ऑर्डर्स में ये आगे बढ़ते जाता है, और आगे बढ़ने के साथ साथ इनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, और एक सुपरइम्पोजिशन से कंस्ट्रक्टिव सुपरइम्पोजिशन से ये हाई इंटेंसिटी बीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम लेजर कहते हैं. और इसके बाद फिर आपस में इनका रिलेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे. सो दिस B12 इट इज इक्वल टू B21. एक रिलेशन ये होता है जहां पर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर फिजिकल कंडीशंस आइडेंटिकल हो तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी आइडेंटिकल होती है. दैट्स व्हाई दिस B12 इज इक्वल टू B21. और सेकंड रिलेशन हमारे पास आया था, दैट वाज A21 by B21, जिसको हम लोगों ने 8 pi h nu cube by c cube ये प्रूव किया था. So this ratio is actually the function of frequency. बाकी सब तो कांस्टेंट है, but this is the function of frequency. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट चाहते होगे उतना ही ज्यादा इनका रेशियो होगा. So इसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था the laser obtaining condition. So the laser obtaining condition was laser obtaining condition, और इसके लिए laser obtaining conditions इसके लिए क्या था हमारा, हम इसको एक्सपेरिमेंटली या लेबोरेटरी लेवल पर इसको अगर कोई प्राप्त करना चाहे इस लेजर को, तो हमारा टारगेट ये होगा कि हम किसी तरह से स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन को बढ़ाएंगे. और स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन को बढ़ाने के लिए इस स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन से फिर इन दोनों को कंपेयर किया था, और हमारे पास दो कंडीशन आए थे. फर्स्ट वन, इन ऑर्डर टू हैव NHT a greater value
what we must have, this n2 must be greater than n1. n2 का मान n1 से ज्यादा होना चाहिए. किसका माइक ऑन है भाई? कोई डिस्टर्ब. So n2 must be greater than n1, and second, that energy given that must be much more. तो जो एनर्जी दी जाती है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, और हायर एनर्जी लेवल पर लोअर एनर्जी लेवल से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होनी चाहिए. मींस पॉपुलेशन, हायर एनर्जी लेवल पे जो पॉपुलेशन है वो लोअर एनर्जी लेवल से ज्यादा होनी चाहिए. एंड दिस इज सेकंड कंडीशन हम इजीली फुलफिल कर पा रहे थे. कल के क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था. दिस can be easily fulfilled by using different pumping techniques. हमने different pumping techniques के लिए इसीलिए different pumping techniques, हम different pumping techniques का इस्तेमाल करते हैं, इसको easily fulfill कर सकते हैं. So second condition is okay. Second condition में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. But what's about the first one? जो पहला कंडीशन है उसको हम किस प्रकार से फुलफिल करेंगे? n2 must be greater than n1, मींस हायर एनर्जी लेवल पर ग्राउंड की शेड से ज्यादा एटम्स होने चाहिए. इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों वेरिएबल हैं. मींस एक छोटा सा एग्जांपल देखें. इफ वी हैव एन इंस्टेंट ऑफ टाइम 100 फोटॉन्स, 100 एटम्स यहां पे था, और आउट ऑफ 100 एटम्स अगर कोई 51 एटम्स यहां ऊपर हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, नीचे बच गया 49. So 51 atoms ऊपर हायर में है, 49 नीचे है. So this n2 is greater than n1, means आधे से अधिक एटम यदि हायर एनर्जी लेवल पे होगा तो ये कंडीशन जो है वो फुलफिल माना जाएगा. So more than half of the atom, so the more than half of total atoms must be 8 excited states में higher energy level. So higher energy level पर आधे से अधिक एटम होना चाहिए. So more than half of the atoms are excited state. तो ये कंडीशन जो है फुलफिल. अब इसमें परेशानी क्या है? ये कैसे इस कंडीशन को हम कैसे फुलफिल करेंगे? तो चलिए देखते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल का हेल्प लेते हुए कि इसमें परेशानी क्या है और उस परेशानी को हम लोग डिफिकल्टी को हम लोग दूर कैसे करेंगे. So how the second condition is fulfilled? So we will use that Boltzmann statistics again. यहाँ पर भी थोड़ा हम मैथमेटिक्स का हेल्प लें फ्रॉम बोल्ट्जमैन. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या होता है बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. n1 is proportional to, बताओ क्या जाने भाई. लास्ट क्लास में हमने n1 n2 लिया था, जल्दी बोलो. जागृत. सर e to the power minus e1 upon kt. Yes, very good. So this is e to the power exponential of minus, this is exponential of minus e1 by kt, and this n2, this is proportional to exponential of e2 by kt. So what will be this n2 by n1? n2 और n1 का जो रेशियो होगा that is equal to, इसको हम न्यूमरेटर में रखें, इसको डिनोमिनेटर में रखें, हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस e2 by e1 by kt. चेक इट, ऐसा होगा. सो दिस इज n1, दिस इज n2 और n2 अपॉन n1. अब इससे पहले n1 by n2 कैलकुलेट किए थे, ये माइनस साइन लेते हैं, पॉजिटिव साइन था. यहाँ पर n2 अपॉन n1 अगर हम लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस e2 माइनस e1 by kt. तो ये आउटपुट आ रहा है. अब ये आगे के मैथमेटिक्स क्या कहता है? Since e2 is always greater than e1, e2 का जो मान होता है this one, this is always greater than this. e2 का मान e1 से हमेशा ज्यादा है. इसका क्या मतलब हुआ? e2 इससे ज्यादा, ये पॉजिटिव हो गया, so वन नेगेटिव टर्म है. so this n2 by n1, this will be a negative exponential. ये negative exponential. think about this. It is exponential minus e2 minus e1,
यहाँ पर E2 इज ग्रेटर देन E1, तो ये पॉजिटिव हो गया, सामने माइनस साइन है, इसलिए N2/N1 इज इक्वल टू अ नेगेटिव एक्सपोनेंशियल। अब मैथमेटिक्स क्या कहता है इसमें, अगर ऐसा कोई नेगेटिव एक्सपोनेंशियल हो तो दिस N2 will be always less than N1 in equilibrium। तो ऑर्डिनरी कंडीशन में N2 का मान जो है वो N1 से हमेशा कम होगा। This is the output given by the mathematics। अगर E2 का मान E1 से ज्यादा है तो N2 का मान N1 से हमेशा कम होगा, जबकि हम लोग उल्टा चाहते हैं। But we need this N2 must be greater than N1। मैथमेटिकली हमारे पास N2 will be less than N1 ऐसा आ रहा है, ये परेशानी है। इसलिए ये जो कंडीशन है N2 must be greater than N1, इसको जो फिफ्थ हम लोग टर्म यूज कर रहे थे वो कहा जाता है। फिफ्थ टर्मिनोलॉजी मैंने कल लिस्ट में बनाया था, देखो क्या लिखा था। 4 टर्म हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, 5वां एक टर्म बचा हुआ था। व्हाट वाज दैट फिफ्थ टर्म? Population inversion. Yes, so that is known as population inversion। That is known as population inversion condition। So population inversion condition fulfill होनी चाहिए। So what is population inversion condition? The population at higher energy level is if greater than the population at the ground state, lower energy level, then that condition is known as population inversion condition। Why this is known as population inversion condition? Because by using this mathematics, what we are getting, by using this mathematics, we are always getting this N2 is less than N1। हमें हमको मिलता है N2 is less than N1। But what we need this N2 must be greater than N1। This is the inverse of what is actually here। तो इसका ठीक उल्टा है, इसलिए इसको कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन। तो पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा है, कैसे fulfill? अब इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन मैथमेटिक्स वाले लोग बड़े इजीली अपने हिसाब से प्रेडिक्ट कर लो, एज्यूम कर लो, मान लो, ऐसा करके कह देते हैं, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। मैथमेटिक्स वाले कहते हैं कि आप एक काम करिए, इस टी को निगेटिव कर दीजिए, यहाँ पर टी करना है, इस टी को निगेटिव कर दो। अगर इस टी को निगेटिव कर दें तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि N2/N1 इक्वल टू पॉजिटिव। प्रॉब्लम यही है मैथमेटिक्स। बट टेम्परेचर T ये केल्विन में है और केल्विन नेगेटिव नहीं होता। जो ना मिनिमम कितना होता है केल्विन की वैल्यू? 273 -273 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 0 केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हाँ यस, 0 केल्विन। और केल्विन को कभी भी डिग्री केल्विन नहीं लिखा जाता ना, अगर कभी ऐसा हो तो ध्यान में रखना। सो इट्स जस्ट केल्विन। सो 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उससे नीचे नहीं जा सकता टेम्परेचर, उसको एब्सोल्यूट माना जाता है। अगर किसी तरह अगर कोई हम मान भी ले कि अगर -1 केल्विन अगर कर दें तो -1 केल्विन विल बी इक्वल टू -274 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम तो सारा डिवाइस रूम टेम्परेचर पे चाहते हैं, अगर उतना लोअर टेम्परेचर पे अगर जाए तो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, लेजर मिल ही नहीं पाएगा। सो दैट नेगेटिव टेम्परेचर इट इज नॉट पॉसिबल, हम नेगेटिव टेम्परेचर नहीं ले सकते, एक तो केल्विन पर। सो ये जो सॉल्यूशन मैथमेटिक्स वाले ने जो प्रेडिक्ट किया था वो हमारे किसी काम का नहीं है। पहले ये बोला कि भैया E2 को आप E1 से कम मान लो। अरे मानने से क्या होता है भाई, यहाँ पे हम इनवर्टली लोड बना के रखे हुए हैं, E2 विल ऑलवेज ग्रेटर देन E1, उसको ऐसा रिवर्स एज्यूम करके नहीं किया जा सकता। हम फिजिक्स वाले एज्यूम करें तो हमें प्रूफ करना भी पड़ेगा, और जब तक अगर प्रूफ नहीं करेंगे एक्सपेरिमेंटली हमारे लिए वो किसी काम का नहीं है। इसलिए हम ना तो इस E2 को E1 से छोटा मान सकते हैं, ना तो इस टेम्परेचर T को नेगेटिव ले सकते हैं। देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? अब ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो आया है उसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसको देखने के लिए थोड़ा सा हम बेसिक पे फिर से जाते हैं। यहीं पर डायग्राम मैंने इसे ड्रा करके रखा हुआ है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम इज दिस लाइफ टाइम। टाउ इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकंड, दैट लाइफ टाइम इज प्रॉब्लम। क्या होता है कि अगर हम किसी टाइम पर अगर मान लें कि वी हैव 100 एटम्स, पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन मेंटेन करने के लिए मैंने कहा था कि 51 एटम्स यहां पहुंचना चाहिए, 41 49 यहां पे बचा होना चाहिए, देन द पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन इज फुलफिल्ड। बट होता क्या है कि जैसे हमने पंपिंग टेक्निक दिया, पंपिंग टेक्निक से एनर्जी देना शुरू किया, ये एटम्स जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे पंप होना शुरू हुआ।
होना ये चाहिए कि जब तक आधे से अधिक एटम यहाँ पे पहुंचा तब तक ये ऊपर का एटम को नीचे नहीं आना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से, लेकिन ऐसा नहीं होता। 20-22 एटम ऊपर पहुंचा रहा है, पहला वाला जो एटम पहुंचा होता है वो नीचे आना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका लाइफ टाइम खत्म हो गया। और हमारे पास ऐसा कोई फास्ट पंपिंग टेक्निक नहीं है कि हम बिफोर 10⁻⁸ सेकंड आधे से अधिक एटम्स को हम ऊपर पहुंचा सकें, हायर एनर्जी लेवल तक पहुंचा सकें। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लाइफ टाइम बहुत कम है। 51 एटम्स जब तक पहुंचे तब तक नहीं, ऊपर का एटम नीचे नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे 20, 21, 22, 23 एटम्स ऊपर पहुंचा, ऊपर जो पहले पहुंचा हुआ एटम था वो नीचे आना शुरू हो जाता है और ये सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। मींस अगर हमको इस कंडीशन को फुलफिल करना हो, n2 का मान n1 से ज्यादा होनी चाहिए, इस कंडीशन को अगर फुलफिल करना हो तो हमें किसी तरह से इस लाइफ टाइम को बढ़ाना होगा, इसको हमें इंक्रीज करना होगा। गेटिंग द सॉल्यूशन? क्योंकि लाइफ टाइम कम होने की वजह से ऊपर के एटम्स जो है वो ग्राउंड स्टेट पे पहले आना शुरू कर देता है बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब क्वेश्चन ये है कि हम इस लाइफ टाइम को कैसे बढ़ाएं। अब इस लाइफ टाइम को बढ़ाने के लिए हमें फिर से एक फिजिक्स यूज करना होगा, एंड दैट फिजिक्स इज हाइजेनबर्ग रिलेशन। कौन सा रिलेशन यूज करेंगे इसमें? तुम लोगों ने क्वांटम फिजिक्स पढ़ लिया है, जल्दी बोलो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? हाइजेनबर्ग रिलेशन। फ्रॉम बोलो हाइजेनबर्ग uncertainty relation। कौन सा रिलेशन यूज करेंगे इसमें? बोलो यार। Del E into del T. Yeah, so that is del t multiplied by del t, it is equal to h bar by 2, where h bar is equal to h upon 2 pi, that's equal to 1.05 into 10⁻34 joules। We will use this relation। अब यहाँ पर डेल्टा टी हमें बढ़ाना है, so this delta t, this implies delta t is equal to h bar by 2 multiplied by delta t। अगर हमें इसकी वैल्यू बढ़ानी है डेल्टा टी, तो ये जो डेल्टा ई है इसकी वैल्यू को हमें कम करनी पड़ेगी। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा टी, एनहांस द लाइफ टाइम ऑफ दैट एटम, ये जो डेल्टा ई है इसका मान कम होना चाहिए। एंड डेल्टा इज व्हाट? दिस इज द गैप बिटवीन दीस टू लेवल्स, E1 और E2 के बीच का गैप को कम करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज, इन ऑर्डर टू एनहांस delta t, that is the lifetime, delta t अगर बढ़ाना है then delta t that is equal to E2 minus E1 must be decreased। हमको उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना होगा। में से जो गैप है E1 और E2 के बीच, इन गैप को हमें कम करनी पड़ेगी। बट ये स्टेबल एनर्जी लेवल्स हैं, हम इस गैप को ऐसे कम नहीं कर सकते ऊपर वाले डंडे को ऐसा पकड़ के नीचे खींच दी, नॉट पॉसिबल। दैट इज अ फिक्स एनर्जी वैल्यू, फिक्स एनर्जी लेवल। इसलिए एक लाइन पर स्टेटमेंट दे दिया जाता है बाय यूजिंग दिस टू लेवल्स E1 और E2। सिर्फ ये दो लेवल का इस्तेमाल करते हुए अपने को लेजर नहीं मिल सकता। गेटिंग द पॉइंट? सिर्फ E1 और E2 इन लेवल को लेकर के हमें लेजर नहीं मिल सकता, क्योंकि ये कंडीशन जो है फुलफिल होना चाहिए, डेल्टा ई का मान कम होना चाहिए, जो कि इसको दो लेवल में पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई सो वी कैन नॉट गेट लेजर यूजिंग टू लेवल सिस्टम, इसको दो लेवल सिस्टम, सिर्फ दो लेवल का इस्तेमाल करते हैं। हमको ये रीजनिंग क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछा जाता है व्हाई यू कैन नॉट गेट लेजर यूजिंग बाय टू लेवल्स ओनली। सिर्फ E1 और E2 को लेकर के आपको लेजर क्यों नहीं मिल सकता, आप लेजर क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? रीजन इज सिंपल। पहला, हमें दो कंडीशन फुलफिल करना था, एक कंडीशन तो ये फुलफिल कर देंगे, हम यहाँ से एनर्जी दे देंगे, बट द फर्स्ट कंडीशन कि पॉपुलेशन इनवर्सन कंडीशन
ये मेंटेन होना चाहिए एंड द पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन कैन नॉट बी मेंटेन्ड बाय यूजिंग टू लेवल सिस्टम। सिर्फ ये दो लेवल का इस्तेमाल करते हुए हम पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए बाय यूजिंग दीस टू लेवल्स वी कैन नॉट गेट लेजर, इसलिए दो लेवल का इस्तेमाल करते हैं लेजर नहीं कर सकते। देख रहा है। अब इसके बाद फिर क्या, अब फिर थोड़ा सा इसको इस लेवल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो थ्योरी दिया गया बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि वो सारा लेजर मैकेनिज्म जो है वो इस थ्योरी पे है। यहाँ पे जो थ्योरी दिया गया उसमें फिर 3 लेवल सिस्टम का कंसेप्ट है। 2 लेवल से अपने को लेजर नहीं मिल सकता, एक लेवल और बढ़ाया गया। सो द थर्ड नेक्स्ट कंसेप्ट इज द 3 लेवल सिस्टम। 3 लेवल सिस्टम। 3 लेवल सिस्टम क्यों आया? क्योंकि हमको 2 लेवल से लेजर नहीं मिल सकता, पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन मेंटेन नहीं हो सकता। अब चलिए देखें ये 3 लेवल सिस्टम में क्या होता है। So the 3 level system, what we have, इस 3 level system में होता क्या है? Again we will have the ground state E1, where N1 atom is here, N1 population is here. When we provide energy by using a proper pumping technique, due to this absorption transition, because of this absorption transition, out of N1 population, N2 populations are excited up to higher energy level. And this higher energy level is, in spite of E2, this is E3. ये जो higher energy level होता है, E3 होता है। तो ground state से atom जो है वो E3 higher energy level पे पहुंची है। Here, its lifetime is only 10⁻⁸ second. So here its lifetime is 10⁻⁸ second. So there is some probability of spontaneous transition. And now we are introducing one more level here. This is at E2 level. And this E2 level is known as metastable level. इसको metastable level कहा जाता है और इस metastable level को dotted line से शो किया जाता है। फिक्स लेवल एकदम बिल्कुल solid lines, metastable level dotted line. So ये dotted line से एक metastable level बीच में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। So now we have 3 levels. This is E1, the ground state, E2, a metastable level, and E3 at higher state. Mechanism कहाँ से start होगा? Again that mechanism will start from this ground state. So in the ground state we have N1 population. When we provide energy by using a proper pumping technique, out of N1 population, N2 populations are excited up to higher energy level through this absorption transition. Here is a lifetime is 10⁻⁸ second. There is some probability of spontaneous transition by which we get random photons. This probability cannot be avoided, and the maximum numbers of these population, these atoms are accumulated here through a non-radiative transition. Non-radiative इसलिए क्योंकि इसमें किस प्रकार का फोटॉन नहीं निकल रहा है, रेडिएशन नहीं निकल रहा है, लाइट नहीं निकल रहा है। That's why. So through non-radiative transition, maximum numbers of atoms are accumulated here in this E2, the metastable level. अब क्या हो रहा है देखो, चेक करें। यहाँ ये गैप इतना ज्यादा था, ये गैप कम हो गया। अब ये गैप कम होने से ऑब्वियसली हमारा टारगेट वही था कि हम किसी तरह से एनर्जी गैप को कम करें, और अगर एनर्जी गैप कम हुआ ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली लाइफ टाइम बढ़ेगा। तो यहाँ जो लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकंड था, वो लाइफ टाइम यहाँ पर बढ़ करके here its lifetime enhanced up to 10⁻⁴ to 10⁻³ seconds. यहाँ इसका लाइफ टाइम की जो वैल्यू हो जाता है वो more than 10,000 times enhance हो जाता है। यहाँ 10⁻⁸ था, यहाँ पर 10⁻⁴ to 10⁻³ seconds हो गया लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम बढ़ गई। तो जो कंडीशन था पॉपुलेशन कंडीशन, अब उसकी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। So the population inversion condition is maintained in between E1 and E2. इससे E1 और E2 के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन मेंटेन हो जाता है। हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। N2 का मान N1 से ज्यादा होना चाहिए, so N2 is more than N1. पंपिंग टेक्निक से हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दिया, दोनों कंडीशन एसेंशियल कंडीशन फुलफिल। अब जैसे हम यहाँ पर एक फोटॉन देते हैं, जो फोटॉन हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये फोटॉन को हम स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन के लिए यहाँ पे देते हैं। दिस इज द स्विचिंग फोटॉन, स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन स्टार्ट्स।
stimulated transition starts. This is a chain reaction through which we get laser. Two levels in between we are getting laser are known as lasing level. So this is known as lower lasing level. लोअर लेजिंग लेवल, दो लेवल जिनके बीच में हमको लेजर मिलता है उसको लेजिंग लेवल कहते हैं. सो दिस इज हमको लेजर मिल रहा है यून रीच के बीच, so this is lower lasing level and that meta stable level is known as upper lasing level. This is upper lasing level. चलिए इस डायग्राम को जैसे मैंने बनाया है एकदम नीट एंड क्लीन, एक एक पार्ट को ध्यान से सोचते समझते हुए बनाओ. इसके बाद फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, लेकिन इसके बीच में मैं किसी को पूछूंगा, है ना, कि ये एक्चुअली क्या है, कहाँ पे क्या डाउट है, क्योंकि ये अगर तुमको क्लियर हो. हाँ जी सर, वो जो अपन मेटा वाला जो लेवल बनाए हैं वो तो हाँ. नीचे ही है, तो जब उसमें एटम्स नीचे आएंगे तो एनर्जी तो रिलीज होगा ही ना सर. तो नॉन रेडिएशन कैसे होगा सर? ये एनर्जी के देखो क्या है कि एनर्जी के बहुत ज्यादा नहीं है. जैसे यहाँ से अगर कोई यहाँ तक अगर कोई हम ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर कोई हम ले रहे हैं तो दैट इज अबाउट 20 to 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लेकिन ये जो गेप रहेगा दैट गेप इज वेरी स्मॉल, दैट इज अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेट्रा. इतने कम ये है कि इसको एक अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि जस्ट इसमें किसी प्रकार का कोई फोटॉन नहीं रिलीज होता है. अब जब फोटॉन रिलीज नहीं हो रहा है, सफिशिएंट एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन रेडिएटिव. ऐसा नहीं कह रहा है कि एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है थोड़ी बहुत एनर्जी को, लेकिन फोटॉन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज नहीं होता. यहाँ पे फोटॉन के फॉर्म में रिलीज होगा, यहाँ पे फोटॉन के फॉर्म में रिलीज होगा, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो फोटॉन के फॉर्म में रिलीज नहीं होता. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज नॉन रेडिएटिव. ओके, तो चलिए डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाओ. मैकेनिज्म ऑफ ऑब्टेनिंग लेजर में तो ये थर्ड लेवल को इंक्लूड करना है कि नहीं? मैकेनिज्म में तुमको सिर्फ तीन बताना है, तीन प्रकार के ट्रांजिशन को बताना है. ए बी जो कोफिशिएंट है उसको बाद बताना है, उसको फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखना है, और अगर वो डेरिवेशन अगर कोई करने के नहीं कहा गया है तो सिर्फ ए बी का फिजिकल सिग्निफिकेंस तक तुम कंप्लीट कर सकते हो. ओके, लेकिन जब 3 लेवल सिस्टम और उसके बाद एक अभी जस्ट मैं 4 लेवल सिस्टम में भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो 3 लेवल सिस्टम और 4 लेवल सिस्टम के बारे में जब पूछा जाएगा तब जाकर के इसको अलग से एक्सप्लेन करना है. मैकेनिज्म में तो सिर्फ वो 3 लेवल आते हैं, 3 लेजर्स, 3 ट्रांजिशंस आते हैं. ओके, चलिए जल्दी बनाओ. हो जाए फिर कमेंट बॉक्स में जल्दी ओके ओके कर देना, अब डन सर कर देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. और एक बार मैं किसी से पूछूंगा, किसी बोलूंगा, उससे पता चलेगा क्या डाउट है. सर हाँ जी सर, हम जब E2 एनर्जी लेवल पे फोटॉन्स देते हैं तो E3 हाँ। एनर्जी लेवल पे क्यों नहीं जाता सर? यस, इससे पहले भी जब हम यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आनी चाहिए. यहाँ पर भी जब हम फोटॉन दिए थे तब भी मैंने कहा था कि एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, वहां पर भी पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जा सकता है. लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट में बार-बार एक टर्म में बार-बार यूज कर रहा हूँ कि दैट फोटॉन व्हिच इज गिवन इज एक्चुअली द कंट्रोल्ड फोटॉन. रैंडम फोटॉन नहीं दे रहे हैं. अगर रैंडमली ऐसे फोटॉन अगर कोई दे दें तो यस देयर इज सम प्रोबेबिलिटी, कुछ से हम ऊपर चले जाएंगे, है ना. लेकिन हम यहाँ पर कोई रैंडम है, जैसे बिलियर्ड बॉल का गेम होता है ना, बिलियर्ड बॉल गेम में क्या होता है, ऐसे बॉल्स हैं, एक बॉल से दूसरे बॉल को कंट्रोल करते हैं, उसके डायरेक्शन को जितने अच्छे से कंट्रोल करेंगे वी आर अ गुड प्लेयर. वैसे यहाँ पर भी हम फोटॉन इस प्रकार से यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं कि ये एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि यहाँ पर दोनों फोटॉनिक नेचर पे, पार्टिकल नेचर पे, तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को हम टकरा रहे हैं और इस प्रकार टकरा रहे हैं कि ये पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ ट्रांजिट हो लोअर एनर्जी लेवल की तरफ. बट अगर कोई बाद में तुमने रैंडमनेस अगर थोड़ा सा दिखाया, केयरलेस अगर कोई दिखाया, तो देयर इज सम प्रोबेबिलिटी कि ये एटम जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाए. ओके, इस तरह के क्वेश्चन उठने चाहिए, तब मजा आता है पढ़ाने में कि भाई यस, हाँ तुम लोग अब सोचना शुरू किए हो जाए तो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भाई, जिसका जिसका होते जा रहा है डायग्राम. और हाँ
करते जाओ। और इसी का भी हो गया, गुड, हो गया। इसमें कर सकता हूँ क्या, तो मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उसके बाद फिर कोई एक जन है जिनको लगता है कि वो बोल सकता है अच्छे से, इसको समझा सकता है, तो मैं फिर इंडिविजुअली करूंगा तो जस्ट टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो एक जन है जिनको लगता है कि अच्छे से समझा सकते हैं, वो जल्दी जल्दी बता देना कि क्या है। सो इन दिस 3 लेवल सिस्टम वी विल स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड स्टेज। हम हमेशा हर बार ग्राउंड स्टेज से स्टार्ट होते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ग्राउंड स्टेज वेयर n1 population is there. So when we provide energy by using a proper pumping technique out of n1 population, n2 populations are excited up to higher energy level through this absorption transition. सारे टर्म्स को मैं साथ में लेकर के चल रहा हूँ जो अभी तक हम लोगों ने किया है। तो by absorption transition out of n1 population, n2 populations are excited up to higher energy level. Here its lifetime is 10 to minus 8 seconds. And there is some probability of spontaneous transition. So this cannot be avoided. So there is some probability of spontaneous transition through which we get random photons. Next is, and the maximum numbers of atoms are accumulated here in this metastable level E2. ये जो एक metastable level है, metastable इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए metastable. So maximum numbers of atoms are accumulated here in this E2, the metastable level, through a non-radiative transition. ये टर्म को भी मिस नहीं करना है, non-radiative transition लिखना ही है. So non-radiative transition से ये atoms जो है वो यहाँ पे accumulate हो गए. Here it's a lifetime enhanced up to, यहाँ lifetime mention किया, यहाँ भी lifetime mention करना है. So here it's a lifetime enhanced up to 10 to minus 4 to 10 to minus 3 seconds. Now the population inversion condition is maintained between E1 and E2. अब यहाँ ये भी लिखना पड़ेगा कि population inversion condition maintain हो रहा है. So the population inversion condition is maintained between E1 and E2. अब population inversion condition maintain हो गया, then when we provide this photon, हमने यहाँ पर एक switching photon दिया, when we provide this photon, stimulated transition starts. So third type of transition is here. So the stimulated transition starts, and this is a chain reaction through which we get laser. chain reaction जिसके थ्रू में लेजर मिलता है. दो लेवल जिनके बीच में लेजर मिलता है उसको लेजिंग लेवल कहते हैं. So here this is upper lasing level and this is lower lasing level. ये 3 level system का explanation है, लेकिन इसके दो ड्रॉबैक हैं. So the limits. ड्रॉबैक नंबर फर्स्ट, इसकी efficiency बहुत कम है. Efficiency is too less, बहुत ही कम है, 0.02%. Second, we get pulsed form laser. जो लेजर मिलता है हमें पल्स के फॉर्म में मिलता है, रुक रुक करके मिलता है, कंटिन्यूस लेजर नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन कंडीशन हमेशा मेंटेन नहीं रहता. यहाँ से एटम नीचे आना शुरू हुआ, जिस रेट से एटम नीचे आता है उस रेट से ऊपर से एटम सप्लाई नहीं होता. तो उससे क्या होता है कि बीच बीच में पॉपुलेशन कंडीशन फेल हो जाता है. तो जब पॉपुलेशन कंडीशन मेंटेन हुआ, पल्स मिला, लेजर मिला. जैसे पॉपुलेशन कंडीशन फेल हो गया, लेजर मिला बंद. फिर नेक्स्ट फिर पॉपुलेशन कंडीशन मेंटेन हुआ. इस तरह से इसमें जो लेजर मिलता है वो पल्स के फॉर्म में मिलता है. तो जब पॉपुलेशन कंडीशन फुलफिल होगा, लेजर मिलेगा, नहीं होगा तो गैप आ जाता है. इसलिए आपको पल्स के फॉर्म में लेजर मिलता है. इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है. ये दो ड्रॉबैक है इस 3 लेवल सिस्टम का. क्लियर? किसी को कुछ कोई बोल सकता है? काज जने आगे बढ़े. आई हैव only 5-6 minutes. नेक्स्ट लेवल कंप्लीट कर देता हूं, इसी की तरह है. नाउ ये जो दो लेवल्स हैं, ये जो दो लिमिटेशंस हैं, इसको ओवरकम करने के लिए, इसको हटाने के लिए फिर एक लेवल और बढ़ाते हैं. और वहां पर फिर यही सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कुछ इस तरह से हो जाता है. मैं यहाँ राइट हैंड साइड में डायग्राम बना देता हूँ. तो दिस इज the 4 level system.
the four level system, again we will start from this ground state. So this is that ground state E1. Here then the N1 population is N1 at the ground state. The same, nothing different from the first one. This higher energy level, this is now E3 के बजाय हो जाएगा E4. This is four level system. यहाँ पर E3 था, वहाँ पर E4 हो गया. When we provide energy by using a proper pumping technique, so this is that energy given. So through absorption transition, out of N1 population, N2 populations are excited up to higher energy level. These are N2 populations. And here it's a lifetime, it is 10 to the minus 8 seconds. Same, no difference. There is some probability of spontaneous transition. इसको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते. Spontaneous transition. So through this spontaneous transition, we get some random photons. And here in between we have two metastable levels. This is one metastable level. This is another metastable level. So ये four level system इसलिए हुआ. And here this is E2 and this is E3. So E1, E2, E3, E4. So इस spontaneous process से कुछ photons कुछ atoms ground state का है. And maximum numbers of atoms are accumulated here through a non-radiative transition. Non-radiative transition. So non-radiative transition से यहाँ पर maximum number of atoms जो है वो accumulated. Again, it's lifetime enhanced up to. This tau, it is enhanced up to 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 3 seconds. More than 10,000 times enhancement. And here the population inversion condition is maintained in between E2 and ये तो खाली है. एक एटम भी अगर यहाँ पे आ जाएगा तो population inversion condition maintain हो जाता है. So the population inversion condition is maintained in between E2 and E3. When we provide, यहाँ पर population inversion condition maintain हो रहा है E1 और E2 के बीच में. यहाँ population inversion condition maintain होता है E2 और E3 के बीच में. When we provide this photon to any external source, internal source, stimulated transition starts. So through this stimulated transition starts, and through this this is a chain reaction, and through which we get laser. And now these atoms of E2 state come back to this ground state by various slow process. Spontaneous slow process ये ground state पे वापस आता है. दो लेवल जिनके बीच में हमको लेजर मिलता है उसको हम लेजिंग लेवल कहते हैं. So here this E2 is known as lower lasing level. इसको कहा जाता है lower lasing level. And this is upper lasing level. तो ये जो पॉपुलेशन इनर्शियल कंडीशन बीच में फाइल हो जा रहा था वो यहाँ पे फिर पॉपुलेशन इनर्शियल कंडीशन हमेशा मेंटेन रहता है और आपको कंटीन्यूअस लेजर मिलता है. साथ ही साथ इसकी एफिशिएंसी इसकी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है. So first efficiency is more than 3 level system. 3 level system से ज्यादा होता है. And second, we get continuous laser. ये 3 level system और 4 level system में difference लिखने के लिए आता है. Now you can give your attendance 1 मिनट है तुम्हारे पास और 1 मिनट के अंदर ही देना. और इसको एक बार अच्छे से बना लो. नेक्स्ट क्लास में एक बार और डिस्कस करूंगा उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे है ना. लेकिन इसको एक बार अच्छे से तुम लोग देख लेना. पुराने वीडियो भी है और इस वीडियो को भी मैं अपलोड कर दूंगा. हाँ, तुमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि टाइप्स ऑफ लेजर में इसको समझाना जरूरी है.